So let's start today's class, that is for a poem The Ghagra in Spate by K.T.N. Darwala. It is a poem re-prescribed in your syllabus. You have your syllabus has been curtailed. Only I think 7 poems have left so far. So Ghagra is the name of river, and we use the before the names of rivers. Spate means flood, deluge, bad. Here there is a description of a situation that has, that you may say, that had arisen due to flood in Ghagra river. So I think you must have got the text. Everyone, everyone must have got the text. I think so. The Ghagra in Spate. This is a poem by K.K.N. Daruwala. The poem describes a kind of situation that has, yeah, that had arisen due to flood in Ghagra river. As we see, you must have witnessed in your city as well, that is, you know, the Ganga river. But this time, I think you mustn't have witnessed, but you must be knowing that Ganga river comes to Baghada, Salori, even some areas of Rajapur, and a kind of deluge, a kind of havoc emerges after the flood. So this poem is a kind of description of the same kind of problem, the same kind of situation. Am I audible, Dinesh, or anyone else? Okay. So let's start the poem, that is the Ghagra in Spate. See, the poem starts, kind of general description, general pointing, a kind with a note of general point that it happens every year. It happens means spate. This flood comes every year in rain season, rain season. And every year. Now the poem is a kind of, it starts abruptly, but it gives a kind of general introduction that the river Ghagra, you must have heard about Ghagra river. So each and every river has a kind of deluge during rain season. It is a common phenomena. It is a common phenomenon of nature. Most of the time we witness. So, it should be your general perception as well. While reading this poem, you must have a kind of general perception to nature and to flood, in our area as well. So let's start. And every year means every year, and every year refers to that it is going to connect, that it happens every year. The Ghagra changes course when flood came. When flood comes in river, river changes
its root. हर रूट, जब भी नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है, उसके जो कोर्स मतलब जो बहाव है वो बदल जाते हैं, मतलब नई दिशा में हो जाते हैं. टर्निंग ओवर एंड ओवर इन हर स्लीप मीन्स that seems that the is in in her sleep turns everywhere means her water. Rivers are named, are categorized as feminine genders. Names of rivers. So be sure there is use of her. Her refers to Ghagra. In the afternoon, now the situation is being given of the afternoon. शाम के समय का, दोपहर के बाद के समय का एक डिस्क्रिप्शन is being given. And the afternoon sees a gray smudge. Smudge means a kind of dirty water. स्मज का मतलब कीचड़ होता है. और शाम के समय जब धूप रहती है, हल्की सी धूप रहती है, तो कैसा कलर दिखता है पानी का. आप लोग देखते हैं कैसे बिल्कुल ग्रे कलर का हो जाता है पानी. वाई? बिकॉज ऑफ सॉइल. बहुत सारी मिट्टी कट करके पानी में बहने लगती है, तो इसलिए ऐसा. इन द आफ्टरनून sea is a gray smudge. Sea here refers to Ghagra river. As a gray smudge. Here, kind of sea here refers to the water of Ghagra river. See, here a kind of personification is being done of the river water. एक्सप्लोरिंग अ ग्रे कैनवास. ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, पूरा कैनवास. कैनवास का मतलब बिल्कुल एक फील्ड, मैदान की तरह वो दिख रहा है. व्हेन डस्क रीचेज हर, जब शाम होती है, थ्रू एन ओवरहैंग ऑफ क्लाउड. शाम के समय जब बाढ़ भी तो नदी में है ही है, जब क्लाउड भी हो जाते हैं तो कैसा होता है. सी इज ओवर स्ट्यूड कॉफी. ऐसा लगता है कि वो उबलती हुई कॉफी की तरह है, मतलब उसके बुलबुले की तरह है. शाम के समय उसका जो दृश्य है, ये कलर, अ काइंड ऑफ कलर, celestial color, is a kind of color image. Here is a color image, here is a visual image. When you talk of imagery in poems, here is the poem is full of images. If you can write, you may write the poem is full of images. Through an overhang of cloud, sees a over stewed coffee at night. रात में क्या होता है? Sees red wheel across the spine of the land. शाम के समय, रात में क्या होता है, जब आकाश में कुछ बादल या थोड़ा साफ हो जाता है तो क्या होता है, नदी बिल्कुल रेड कलर में दिखती है. अक्रॉस द स्पाइन द लैंड, मतलब जो भी क्षेत्र फैला हुआ है, क्योंकि कुछ लाल मिट्टी का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर कुछ मिट्टी, जो नदी है कैसी दिखती है, रेड कलर की. सो द पोएट हैज ट्राइड टू गिव यू अ काइंड ऑफ phenomena, a kind of situations, that how the water of river seem during the afternoon, during the evening, and during the night. Now, this is the first, stanza. Now, the second stanza will talk of something else. Driving at dusk. If you here refers to the readers. If you go driving at dusk, you wouldn't know. शाम के समय यदि आप वहां घूमते टहलते पहुंच जाएं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि रात में होने क्या वाला है. आपको शाम के समय पता भी नहीं चलेगा कि बाढ़ है. क्यों? क्योंकि मिट्टी का कलर और पानी का कलर सेम हो जाता है.
ड्राइविंग एट डस्क, शाम के समय, यू वुडंट नो, आपको पता भी नहीं चलता है, देयर इज अ फ्लड, की बाढ़ आ गई है, द लैंडस्केप इज सो सुपरबली इक्वपाइज्ड, सुपरबली में अच्छे ढंग से, इक्वपाइज्ड मींस दोनों का रंग सिमिलैरिटी के साथ हो गया है। नाइस राइस शूट्स प्रिकिंग थ्रू, राइस जो चावल या कह सकते हैं धान के जो खेत हैं, जो उसी समय धान की खेती होती है, तो धान शूट का मतलब जो ऊपर का जो पेड़ है, जो धान का पेड़ पौधा है, उसके ऊपर का जो भाग है जिसका जहां पर धान लगता है, वहां की कह रहा है कि राइस शूट्स प्रिकिंग थ्रू, पानी से क्या ऐसा लगा झंक रहा झांक रहा है, हर जगह पानी भरा हुआ है, कहां पर, खेतों में भरा हुआ है, लेकिन और ये खेत कहाँ, धान के खेत है, वहां भी पानी भरा हुआ, और ऐसा लग रहा है कि उसके जो पेड़ हैं वो ऊपर की ओर निकल रहे हैं, पानी से ही निकल रहे हैं। A stretch of water and light spiked shadows, inverted trees, kingfishers, gulls, as twilight thins, the road is black stretch running between the stars. यानी कि शाम, देखो एक बहुत सारी इमेजेस बनाई गई हैं, क्या है कि पानी हर जगह फैला हुआ है, स्पाइक्ड शैडोज, स्पाइक्ड, स्पाइक का मतलब कटीले, शैडोज का मतलब जो उसके किसके छांव पड़ रही है, किसके, पेड़ों की, पेड़ क्या है, पेड़ जैसे ऊपर की ओर गए तो ऐसा लगता है कि नीचे की ओर मुड़े हुए हैं, नीचे भी पेड़ आपको दिखेगा। किंगफिशर्स, ये किंगफिशर का मतलब एक प्रकार के पक्षी हैं, गर्ल्स भी बगुला उगला प्रकार के होते हैं ना, उस समय बहुत सारे आ जाते हैं। एज ट्विलाइट थिन्स, जब ट्विलाइट का मतलब गोधूली बेला होता है, डस्क, जब गोधूली बेला या ये शाम समाप्त होती है तो क्या होता है, द रोड इज ब्लैक, जो सड़कें हैं, सड़क यहाँ नहीं मतलब जो पानी है, पानी ऐसा, वाटर, फ्लड वाटर ऐसा लगता है मानो कि वहां पर काली सड़क बनी है, किस पर, वो पानी भी बिल्कुल समतल सड़क की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि ऊपर आकाश और नीचे ये क्या है, समतल मैदान जिस पे सड़क बनी हुई है, ऐसा महसूस होता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ इमेज, इट इज a kind of image, visual image is everywhere। अभी आगे चलते हैं। एंड सडनली एट नाइट, और रात्रि में क्या होता है, द नॉर्थ कम टू द विलेज, नॉर्थ करेक्ट जो गांव है उसके उत्तरी ओर से नदी क्या होती है, गांव में प्रवेश कर जाती है, बाढ़ आ ही रही है, तो रात में क्या होता है, नदी सडनली एट नाइट द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नदी का जो उत्तरी छोर है, नदी जो गांव के उत्तरी छोर में जो नदी है उस तरह से पानी गांव में प्रवेश कर जाता है। एंड सडनली एट नाइट द नॉर्थ कम्स टू द विलेज राइडिंग ऑन रिवर बैंक, मतलब नदी का पानी गांव में प्रवेश कर जाता है, राइडिंग ऑन रिवर बैंक, इट मींस रिवर वाटर comes to the village area। 20 minutes of a nightmare spine and fear turns phantasmal, phantasmal का मतलब होता है ऐसे लगता है कि सब स्वप्न देखा जा रहा, भूत से संबंधित होता है, लेकिन इसका मतलब किसी से लग रहा है सब कुछ स्वप्न, नाइटमेयर का मतलब जो खतरनाक स्वप्न हो। And fear turns phantasmal as half a street goes journeying in the river valley। 20 minutes of a nightmare, nightmare, nightmare का मतलब होता है बहुत गड़बड़ सा स्वप्न, ऐसा लग रहा हो कि 20 मिनट में ही पानी गांव में प्रवेश किया और पूरे गांव को क्या कर दिया, पूरे गांव को डुबो दिया। 20 minutes of a nightmare spine, spine का मतलब घूम घूम करके, एंड फियर टर्न्स, और वो जो डर था, जो भय था, वो क्या हो गया, फैंटास्मल हो गया, मतलब बिल्कुल बहुत गड़बड़ स्थिति में पहुंच गया। मींस पीपल
people felt the bad kind of experience with the water. As half a street goes journey, आधी मतलब सड़कें का मतलब पूरा गांव का गांव क्या हो गया, डूब गया और नदी में चला गया. If only voices could light lamps, केवल लोग अपने लैंप्स लेकर के, और आवाज केवल दो चीज दिख रही थी या सुनाई दे रही थी, क्या? लैंप और लोगों की आवाज. मतलब चिमनी, उस समय तो लाइट नहीं हुआ करती थी ना, चिमनी लैंप जला करके लोग अपने अपने छतों पर. इफ ओनली लिम्स को टर्न टू राफ्टेड बम्बूज, और उसमें से कुछ लोग क्या हुए, बम्बूज के सहारे, बांस के सहारे इधर से उधर जाने का प्रयास कर रहे. इफ ओनली लिम्स, लिम्स का मतलब जो भुजाएं जिनकी मजबूत थी, तो वे लोग आगे राफ्ट, राफ्ट मतलब बांस का जो ना, बांस के सकते, राफ्टेड बम्बूज का मतलब कि जो छप्पर वगैरह में बांस लगे थे जो यूज किए थे, उन्हीं के सहारे वो आगे. और राफ्टेड का मतलब ये सीढ़ी होती है, तो बम्बू की जो सीढ़ी उसका भी वैसे भी, या कह सकते हैं उसका जो बम्बू का जो बना लिए हो चलने के लिए पानी पर नाव की तरह, वैसा. नाउ द फोर्थ, द थर्ड स्टैंजा. एंड थ्रू द विलेज, और अब गांव से क्या हो रहा है, पानी गांव के बीचों बीच से बहने लगा. एंड थ्रू द विलेज द घाघरा स्टीयर्स हर कोर्स. थ्रू द विलेज, अब गांव से ही, गांव के बीचों बीच से घाघरा नदी का क्या हो गया, बहाव हो गया. एंड थ्रू द विलेज, थ्रू का मतलब एक पार से दूसरे पार, बेसिकली प्रीपोजिशन है. जब कभी आप क्या करते हैं कि एक पार से दूसरे पार जाना हो तो थ्रू का प्रयोग करते हैं. एंड थ्रू द विलेज, और गांव के बीचों बीच से क्या हो गया, घाघरा स्टीयर्स हर कोर्स, घाघरा नदी अब क्या हो गई, अपना रास्ता बना ली. थैच, थैच का मतलब होता है छप्पर. छप्पर समझते हैं, जो घास पात के जो छत बनते हैं, छपरा जिसे कहते हैं. थैच, थैच में छप्पर. एंड डंग केक्स, कंडा समझते होंगे, उपली समझते होंगे. डंग केक्स टर्न टू रिवर स्कम, जितने भी डंग केक थे, उपली थी, वो क्या हो गई, उसी नदी के धारा में बहना प्रारंभ, मतलब उसी में बहने लगी. यू नो दैट dung cake and thatch started, they started, flowing in the water, in the flood water. A buffalo float मतलब तैर करके. A buffalo floats over the rooftop, एक गाय या सॉरी एक भैंस, वो तैरते हुए क्या हो गई, रूफ टॉप पे पहुंच गई, छत पर पहुंच गई. Where the men are stranded, strand का मतलब होता है किसी मुसीबत इत्यादि में शरण लेना. तो जहां पर आदमियों ने, मनुष्यों ने शरण लिया था, वहां पर एक गाय, सॉरी एक भैंस पहुंच गई. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग रीच्ड ऑन द रूफ टॉप इन द पोयम घाघरा इन स्पीच. तो उसमें बफेलो था, काऊ था, सीप था, गोड था, 4 ऑप्शंस. ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं. इन्हीं किसी चीजों के लिए पढ़ना होता है कंसंट्रेशन से, और वो हायर एजुकेशन के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में, बड़े एग्जाम में. Where the men are stranded, so strand हमने आपको बताया कि जहां पर लोगों ने शरण लिया. 3 days of hunger, 3 दिन क्या हो गया, 3 days of hunger, 3 दिन बीत गया. अब करते करते 3 दिन बीत गया. 3 days of hunger and her udders, udder मतलब थन होता है, जहां से दूध निकलता है, वैसे
एंड हर अडर, और उस भैंस का क्या है, जो थन है, टर्न रेड रिम्ड, उसका दूध नहीं निकाला गया तो क्या हो गया, लाल पड़ गया, एंड सॉलिड, और उसमें स्वेलिंग आ गई, विद मिल्क एग्जॉर्शन, मतलब मिल्क की अधिकता से। एग्जॉर्ट का मतलब ऐसे होता है निकालना, यहाँ अधिकता से है कि मिल्क अधिक हो गया। अब एक जैसे गाय भैंस दूध दे रही हूँ और उनका एक दिन 2 दिन ना निकाला जाए दूध तो प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो वैसा ही हुआ उस भैंस के साथ, उस बफेलो के साथ। चिल्ड्रेन है, अच्छा, अभी कह रहे हैं कि मनुष्य लोग तो परेशान हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लोग तो परेशान है, क्या किया जाए। लेकिन दिखाते हैं कि चिल्ड्रन की आइडियोलॉजी क्या होती है, चिल्ड्रन कैसे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं। चिल्ड्रन हैव स्पिरिट एनफ टू इन देम, करेक्ट, लेकिन बच्चों में अलग उत्साह है, क्या उत्साह है, चिल्ड्रन हैव स्पिरिट एनफ इन देम, लेकिन जो बच्चे हैं उनका अलग ही उत्साह है, अलग ही वो स्पिरिट है। क्या कर रहे हैं वो, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। लोग तो सोच रहे हैं कि कैसे बचा जाए, कैसे खाने की व्यवस्था हो, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, नाव बना करके, नाव ना पानी की, सॉरी, पानी में जब कागज की नाव डालते हैं तो कर रहे हैं। एंड चिल्ड्रन हैव स्पिरिट इनफ इन देम, करके अभी भी बच्चों में क्या उत्साह है, स्पिरिट है, टू चीयर द रेस्क्यू बोट्स। अभी आगे बताएंगे, जो रेस्क्यू बोट्स हैं, जो बचाव राहत के लिए जो बोट्स हैं, जो नाव लगी हैं, उनको उत्साहवर्धन कर, चीयर कर रहे हैं, कौन, बच्चे ही कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग और आदमी लोग सब बैठे हैं शांत से। द मेन आर स्टिल लाइफ सब्जेक्ट्स, करे कि मनुष्य को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन रहे कि नहीं रहे कुछ नहीं पता है। ओजिंग बिट लुक्स, ओज का मतलब टपकना, ओजिंग बिट लुक्स मतलब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है, बिट लुक्स मतलब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जो मनुष्य जो बड़े हैं, सयाने हैं, उनके आंसू, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि वो दे आर वेरी वरीड हैं, दे डोंट रेव आर कर्स, कहे कोई किसी को कर्ज नहीं, मनुष्य जो है तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। रेप का मतलब भी कष्ट होना है, देना, और कर्ज का मतलब भी वही किसी की निंदा करना। फॉर दे नो द रिवर स्लैंग, क्योंकि वो जानते हैं कि रिवर तो ये हर बार का काम है, हर अर्गट, वो उसके चाल चलन, उसके क्रियाकलाप से परिचित है। नो वन सेंड्स अ प्रेयर्स टू द वेस्टेड स्काई, करे कोई भी भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा है। फॉर प्रेयर्स आर पैराबोलिक, क्योंकि जो प्रेयर्स हैं वो अपने पर ही लौट के आती हैं, वो अपने से संबंधित होती हैं। ये एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया, इसकी मीनिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दे विल कम डाउन विद द फ्लो ऑफ एनी, करे कि यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो आप पर ही लौट के आता है, मतलब वो आपको ही करना होता है। इंस्टेड देयर इज स्लग स्टैम्पीड, स्टैम्पीड मतलब भगदड़, मतलब हल्की फुल्की इधर उधर ऐसे ही लोग भाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कुछ किया जाए। आउटसाइड द बूथ, बूथ इज अ प्लेस वेयर सम यू नो things are available for eating, for some necessary चीजें, necessary things are available there, where they are doing out, where they are doling out salt and grain। डोल आउट का मतलब प्राप्त करना, जहां पर वह लोग क्या है, मनुष्य लोग जा रहे हैं किसके लिए, साल्ट और ग्रेन के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। चलिए, कितना क्लियर हो गया। 10 miles to her flank, peasants go fishing, करे कि दूर दूर तक, दूर दूर तक जो और लोग थे वही लोग नदी में आ गए थे, क्या करने, मछली मारने, फिशिंग करने। peasants go fishing in the rice fields, जो राइस फील्ड थी, जो चावल या धान की खेती थी, उसमें क्या कर रहे थे,
वो लोग मछली मार रहे। फिश मतलब होता है मछली, और उसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो फिशिंग क्या हो जाएगा, वर्ब के रूप में यूज होता है। इसका मतलब मछली मारना, मछली पकड़ना। जैसे मिल्क मतलब होता है दूध, और मिल्क मिल्क का वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, उसका मतलब दूध निकालना, दूध दुहना जिसे कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी देना, पानी देना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन के रूप में अलग मीनिंग में यूज होते हैं और वर्ब के रूप में अलग मीनिंग में यूज होते हैं। तो आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। 10 miles to her flank, peasants go fishing in rice fields and women in chauffeur-driven cars go looking for driftwood। करे कि बगल में सड़क है, तो शॉफर का मतलब होता है चालक, ड्राइवर, और कुछ सोफिस्टिकेटेड महिलाएं उधर से गुजर रही हैं जो ये देख रही हैं इस बाढ़ के नजारे को। नाउ द लास्ट पैरा, बट इट इज when she recedes, recede मतलब पीछे हटना। सी किसके लिए आया है, नदी के लिए, घाघरा के लिए। बट इट इज वेन, अब करें कि बाढ़ तो समाप्त हो जाएगी, बाढ़ के बाद की कंडीशन बताते हैं। द सिचुएशन ऑफ आफ्टर फ्लड। नाउ द सिचुएशन ऑफ आफ्टर फ्लड हैज बीन being delineated by being characterized, but it is when she recedes, recede मतलब पीछे हटना, मतलब बाढ़ कम होना। सी किसको है, घाघरा रिवर को। द घाघरा टर्न्स बीची, मतलब बीची का मतलब गंदा हो जाना। बिच किसके लिए यूज होता है, बिच का मतलब गंदे के लिए ही यूज होता है, बल्कि बेसिकली कुतिया के लिए यूज होता है ना, फीमेल डॉग के लिए होता है। बट जब हम ऐसी स्थिति में यूज करते हैं, इट मीन्स क्या हो जाता है, बिची का मतलब गंदे से है। बट इट इज व्हेन शी रिसीड्स दैट द घाघरा टर्न्स बिची, वो बिल्कुल अपवार्ड हो जाता है। सकिंग विद एनिमल हीट, जो मतलब बहुत बदबू आती है। सकिंग, सक का मतलब चूसना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कि बहुत गंदी स्मेल आती है। क्रॉस एडीज डाइविंग लाइक फ्रॉग मेन। क्रॉस एडीज करे कि जो पानी भरा होता है उसमें फ्रॉग्स टहलते हैं। एंड साइंग अवे द वाटर फ्रंट, और हर जगह पानी भरा होता है। इन अ पैरानॉइड फ्रेंजी, और हर जगह बिल्कुल बदबू की स्थिति बनी होती है। पैरानॉइड को मतलब जो बदबूदार, ये जो खतरनाक, जो अनावश्यक, ऐसी फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब बेसिकली फ्रेंजी का मतलब होता है उत्साह, अत्युत्साह, जो जितना ना होना चाहिए। इसका फ्रेंजी का मतलब गुस्सा भी होता है। सी फ्लीज फ्रॉम द सीन ऑफ हर ओन हैवक। क्या होती, गायब हो जाती है। कौन, नदी जो है वो गायब हो जाती है। कहाँ, हैवक मतलब ये खतरनाक स्थिति को बना करके वो गायब हो जाती है। बिहाइंड हर द लैंड सिंक्स, उसके आसपास क्या होता है, लैंड, हर जगह क्या होता है, बस मतलब जमीन तो रही नहीं थी, पानी हर जगह हो जाता है, पानी निकलता है फिर सूखेगा। बिहाइंड हर द लैंड सिंक्स, जो जमीन है वो सिकुड़ जाती है, मतलब हर जगह वो गीली हो जाती है। हाउसेस सैग, सैग का मतलब होता है लोना लग, जो ना मतलब मिट्टी के जो घर होते हैं उसमें पानी रिस जाता है, या पक्के घर होते हैं उसमें पानी रिस जाता है। रिसना समझ रहे हैं कि पानी ही दिखता हर जगह, और जहां तक पानी नहीं गया होता वहां तक पानी, मतलब हर जगह प्रभाव अपना दिखाता है। बिहाइंड हर द लैंड सिंक्स, हाउसेज सैग ऑन देयर नीव्स।
पहले तो कच्चे मकान ही हुआ करते थे। नी का मतलब घुटना होता है। यहाँ इसका मतलब आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जो लोग गांव से हैं, जो शहर से हैं, उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब कच्चे मकान हुआ करते थे, नीचे पानी लग जाया करता था, तो वो पानी से ढह जाते थे। नीचे नीचे क्या होते थे, ढह जाते थे। ऊपर तो बना रहता था सूखा, लेकिन नीचे की जो नींव थी वो ढह जाती थी। वो यदि वजन ज्यादा हुआ करता तो अपने आप ही वो हवा लगने पर ढह जाते थे या सूख जाते थे, तो अच्छा होता था। उसी को सैग कहते हैं। नीच इन अ फेयरवेल ओबेसेंस। ओबेसेंस का मतलब होता है एक स्मारक, इसका मतलब पहचान। फेयरवेल का मतलब विदाई, विदाई की पहचान छोड़ के वो जाते हैं। कौन? नदी, नदी का पानी। And miles to the flank, the paddy fields will hold their fish till the mud enters into। करे कि और जो ये पैडी फील्ड है, उसमें बहुत सारी मछलियां रह जाती हैं, बहुत सारे और जानवर रह जाते हैं। आप यदि देखें तो बाढ़ आती है, खेतों में रह गए मेड़ होते हैं, उसकी वजह से पानी बाहर नहीं जा पाता है, पानी वहीं भरा रहता है। उसका परिणाम ये होता है कि पानी तो घट जाता है, लेकिन उस खेत में पानी बचा रहता है, उसमें कुछ मछलियां भी रहती हैं। अब क्या होता है, वो पानी वहीं बचा रहता, मछलियां वहीं बची रहती थी। यही है ना कि एंड माइल्स द फ्लैंक द पैडी फील्ड्स विल होल्ड, होल्ड का मतलब संरक्षित रखना, देयर फील्ड देयर फिश, मछलियां वहां बहुत सारी रुकी रह जाएंगी, टिल द मड एंटर्स इनटू कंस्पिरेसी विद द सन। ये एक प्रकार का ये है पर्सनिफिकेशन है कि जब मिट्टी सूर्य के साथ कंस्पिरेसी करेगी, मतलब सूर्य की रोशनी से वो सूख जाएगी, तो क्या होगा उसी में, एंड स्ट्रेंगल्स देम। स्ट्रेंगल मतलब का गला घोंट कर मारना। तो मछलियां उसमें पड़ी रहेंगी, और फिर जब खूब धूप होगी, उसकी वजह से पानी क्या मिट्टी पूरी सूख जाएगी, और उसका परिणाम ये होगा कि क्या होगा कि हर जगह जितनी भी जो मछलियां होंगी मर जाएंगी उसी में, और उसी में दफन हो जाएंगी। आई होप पोयम आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन और इससे संबंधित क्वेश्चन बाद में आप दिसंबर या जनवरी में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।